Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the TYPSC Inorganic Chemistry Semester 5 lecture of Comparative Chemistry of Group 16. So friends, in our last lecture we have taken the introduction about the group 16 elements. They are also known as chalcogens, right? And there are 5 elements in this particular group. They are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and nowadays livermornium is also added in that. Okay, so you can also have a look on their position in periodic table. So this is the particular position. They are at the right side, and we can also see that they are just nearby our noble gases. Okay, then we have seen their electronic configuration, and in this we have seen that in their outermost shell there are 6 electrons and their configuration is Ns2 and Np4. Okay, so there are 6 electrons, means only 2 electrons are required to obtain the stable configuration, and therefore they are very active. Okay, only 2 electrons are required, that electron can be gained easily, and therefore they are very much active elements. Then we have also seen their different physical and chemical properties. So we have also discussed about their properties like atomic number, atomic volume, their density, ionization energy, then metallic and non-metallic character, and also about their melting and boiling point. Okay, so we have also seen that their melting and boiling point कैसे increase decrease हो रहे, that we have discussed, and about their conductivity. Okay, then friends, we have come to the next point, and now I will explain you the further properties about oxidation states. Okay, so these oxidation state, we know that their outermost electronic configuration is Ns2 and Np4. Okay, it is of oxygen family, and therefore they require only 2 electrons to obtain their stable octet, and therefore it can be achieved by various oxidation state, like they can gain 2 electrons. Okay, it is very easy to gain 2 electrons to obtain the octet state. Okay, so it can be O2 minus, S2 minus, selenium 2 minus, or tellurium 2 minus. Okay, this way they can obtain the oxidation state, or even they can share 2 electrons. Okay, every time gaining of 2 electron is not possible, so they can also share 2 electrons. Okay, so 2 hydrogen atom generally share their electron with this particular group. तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, H2O वेरी फेमस एंड कॉमन एग्जाम्पल. ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, विथ 2H, 2 हाइड्रोजन के साथ अलग अलग, राइट, एक हाइड्रोजन के साथ एक और दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा. So this way they form HOH, that is H2O. Similarly HSH, H2S. Okay, HSCH मतलब H2Se. So this way they can form the normal compounds which are very famous and common. Okay, similarly they can form a double bond. तो हमेशा शेयरिंग या फिर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, तो दे कैन ऑल्सो फॉर्म अ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दे शेयर और दे कैन फॉर्म डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन like CO2, okay, CS2 etc. और दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. समटाइम क्या करते हैं वो लोग, एक इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट कर लेते. सो दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन, ओके, और फॉस्फिन ऑक्साइड्स. तो यहाँ पे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं. सो दिस वे दे शो different oxidation states like -2, +2 etc. Then now next property is also very important property and it is called as catenation. Okay, ये catenation क्या होता है, तो catenation is the tendency of element to bind with themselves
अपनी एलिमेंट के साथ ही बॉन्ड बनाना, एंड इट इज़ थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग, ओके, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग कंपाउंड। तो जैसे कि कार्बन है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इजीली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, चारों डायरेक्शन में बना सकता है, बिकॉज वी नो कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सी और चारों तरफ उनके क्या है, देयर आर बॉन्ड्स, तो वो जो चेन है वो चारों तरफ से बढ़ सकती है। So this is called as catenation property, where the element forms covalent bond with itself to form a long chain और रिंग कंपाउंड। जैसे कार्बन 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 कार्बन, बेंजीन में भी देखो रिंग फॉर्म हो जाती है, ऑल कार्बन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो शोन बाय द ग्रुप 16 एलिमेंट। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर, दे इजीली शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ओके। ज़्यादा कौन दिखाता है, सल्फर दिखाता है। सो सल्फर शोज कैटिनेशन इन अ लार्ज एक्सटेंट, and it is unique in forming polyoxides or polythionic acids, okay, they can also form thioions। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे HOOH, राइट, या फिर S दूसरे S के साथ बॉन्ड बनाता है, तो HSSH। दिस वे they can form bond with their own element, and that is called as catenation, okay. Then the next important property is tendency to form hydrogen bond, okay। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या, कि ये जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन सल्फर, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दे कैन ईजिली फॉर्म एलिमेंट, दे कैन फॉर्म ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो क्या होता है कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है मोर एंड मोर देन हाइड्रोजन, दिस टेंडेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो देयरफॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स, the ease of formation of hydrogen bonding actually decreases from oxygen to selenium, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है ना, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू सेलेनियम, एंड देयरफॉर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाता है, ऑक्सीजन, ओके। तो ऑक्सीजन हमेशा हम लोग देखते हैं OH, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर, है ना, या फिर वाटर में HOH, ये बॉन्ड तो है ही, लेकिन दूसरे जो H2O मॉलिक्यूल्स है उनके साथ ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज molecular structure, okay। So molecular structure of elements group 16 also exhibit some notable trends। उसमें क्या notable trend मिलते हैं हम लोगों को, that oxygen consist of diatomic molecule, है ना, हमेशा क्या बनाता है, O2, ऑक्सीजन कभी सिंगल नहीं मिलता, है ना, तो जो हवा में एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में होता है, दैट इज़ ऑलवेज इन डायटोमिक फॉर्म O2। फिर सल्फर जो है वो वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स में मिलता है, दैट इज़ रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो है दे हैव रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड the molecular structure of tellurium is similar to that of selenium, and the last element, that is polonium, it is a metal and it has a metal lattice also, okay। So this polonium is dimorphic, okay, and it has a cubic lattice structure। So this way ये जो elements है 16 group elements, they have very notable type of structures in them, okay। So it is also there one of the most important property। और लास्ट जो है दैट इज़ एलोट्रोपी, ओके। सो एलोट्रोपी का मतलब क्या है कि अपने जैसे ही, मतलब अपने आप से बॉन्डिंग फॉर्म करके अलग अलग फॉर्म के कंपाउंड बनाना, ओके। तो जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं कि वी विल जस्ट कंसीडर द एग्जांपल ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है वो क्या करता है, डायमंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसमें सारे जो बॉन्ड्स है दे आर इन बिटवीन कार्बन ओनली, कार्बन कार्बन कार्बन।
लेकिन उसमें जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि उसका डायमंड बन जाता है। लेकिन वही कार्बन अगर sp2 फॉर्म में आ जाए, कार्बन डायमंड में क्या होता है, it is very hard and very good lustrous element और we can say compound, लेकिन जब वो ग्रेफाइट बन जाता है sp2 कॉन्फ़िगरेशन तो उसकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एलोट्रोपी, अलग अलग फॉर्म सेम ही एलिमेंट के। तो ऐसी एलोट्रोपी जो है वो ग्रुप 16 एलिमेंट्स आल्सो shows. Okay, so these are the various chemical and physical properties of group 16 elements. Okay, so now we will see about the anomalous behavior of oxygen. Okay, अभी ये anomalous behavior क्या होता है? Anomalous मतलब थोड़ा सा अलग behavior. Okay, so oxygen जो है it is the first member of group 16, right, and the member of second period of periodic table. मतलब अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो 16 ग्रुप है, और अगर हम पीरियड की बात करें, रोज की बात करें, तो इट इज़ अ सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके, इट हैज़ वेरी डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर फ्रॉम इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप से अलग कैरेक्टर थोड़े वो दिखाता है. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ 3 मेन प्रॉपर्टीज़. ओके, ये जो डिफरेंसेस है जो वो अपने ग्रुप से दिखाता है अलग, वो क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस 3 रीज़न. वेरी फर्स्ट इज़ स्मॉलर एटॉमिक साइज़. बाकी के सारे जो एलिमेंट है ग्रुप 16 में, उसके कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का साइज़ बहुत छोटा है ना. इट हैज़ वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज़. देन सेकंड वन इज़ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ओके, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज़ वेरी हाई कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स. And the third one is non-availability of d orbital in valence shell. हमें पता है कि वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें अगर d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल फ्री हो तो क्या क्या होता है, दैट वी हैव सीन इन आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट. ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल होती है या f ऑर्बिटल अवेलेबल होती है, दे शो वेरियस dd एंड ff ट्रांजिशंस. लेकिन यहाँ पे उनके पास, ऑक्सीजन के पास ऐसा कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, एंड देयरफॉर आल्सो दे शो वेरियस कैरेक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम देयर अदर एलिमेंट्स. ओके, तो ये क्या है, क्यों है ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़, वो हम लोग देखेंगे. सो ऑक्सीजन डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर फ्रॉम द ऑक्सीजन फैमिली एंड इट शोज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. क्या प्रॉपर्टी दिखाता है? तो सबसे पहली चीज़ जो ऑक्सीजन दिखाता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप 16, मतलब अलग है उसकी फैमिली से, वो क्या है? दैट इज़ डाई एटॉमिक गैस. सो ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड अदर कैनॉट शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, है ना. तो इट इज़ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी दैट oxygen always occur in diatomic gas molecule. Second one, negative and positive oxidation state. So in case of only fluorine, it shows negative oxidation state, but in other cases oxygen can also show positive oxidation state. Okay, so minus oxidation state भी दिखाता है in case of H2O2, और माइनस से प्लस तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन दिखा सकता है. ओके, देन थर्ड वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ज़्यादा कैटिनेशन नहीं दिखाता. जैसे हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया कि कैटिनेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं दिखाता. सो देयर इज़ नो मच टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन. Then next is easier oxidation और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑक्सीजन क्या करता है? बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है. ओके, सो इट एंटर्स इजीली टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो सल्फ़र और बाकी जो एलिमेंट्स है वो बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है. देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम इट्स ग्रुप इज़ easier hydrogen bonding, and last one is paramagnetic behavior.
बाकी सारे एलिमेंट जो इसके ग्रुप में है उससे ये एक अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म. सो वेदर इट इज़ इन गैशियस फेज और इन लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, ऑक्सीजन चाहे किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, इट विल शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. ओके, सल्फर अल्सो शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, लेकिन बाकी के जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं दिखाते. सो ऑक्सीजन स्ट्रांगली शोज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्टेबल विथ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी ज़्यादा हो तो ही उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, स्टेबल. क्योंकि अगर बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाएगा. लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीजन दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ 496 किलो जूल पर मोल. So it is very high and therefore it is very difficult to break the oxygen molecule and it is highly stable. Okay, then oxygen can also use their pi orbitals and they can form strong double bond. ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है इन इट्स पी ऑर्बिटल. हम लोगों ने देखा है ना Np4, NS2 Np4 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये जो पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली यूज़ कर सकता है एंड इट कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड. ओके, सो ये जो डबल बॉन्ड है ये हम लोगों को कहाँ कहाँ दिखाई देता है, जैसे कि CO2. ओके, लाइक दैट. सो it is also very important and different property of oxygen. Okay, so this is called as anomalous behavior of oxygen. Then we will see now the important character of group 16, that is allotropy. Now see what is allotropy. Allotropy or allotropism is the property of some chemical elements to exist in two or more different form in same physical state. फिजिकल स्टेट भी सेम है लेकिन एलिमेंट क्या करता है, अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाकर अलग अलग फिजिकल स्टेट फॉर्म कर सकता है, फिजिकल फॉर्म कर सकता है. ओके, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कार्बन. तो कार्बन जो है ऐसे फॉर्म्स बनाता है विच आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एक फॉर्म है उसका कार्बन और एक फॉर्म है उसका ग्रेफाइट, है ना. तो इसमें क्या दिखाई दे सकते हैं हम लोग कि sp3 एंड sp2 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो अलग अलग टाइप ऑफ फॉर्म दिखा सकता है. सो कार्बन कैन एग्जिस्ट इन वी कैन से डायमंड एंड ग्रेफाइट फॉर्म. तो ये जो क्या है, देयर आर ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड इन डायमंड ऑल्सो एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ग्रेफाइट ऑल्सो. ओके, और एक एग्जाम्पल है दैट इज़ कोल. ओके, तो ये सारे क्या है, दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. सारे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, उसमें कोई और एटम प्रेजेंट नहीं होता, बट स्टिल दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज़ कॉल्ड एज एलोट्रोपी. तो ऐसी एलोट्रोपी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स भी दिखाते हैं. ओके, सो व्हाट आर दोज, सी हियर. In case of oxygen it shows two forms. जो एलोट्रोपी है ऑक्सीजन के अंदर वो दो फॉर्म में दिखाई देती है, दैट इज़ आइदर ऑक्सीजन और ओजोन. देखो ऑक्सीजन और ओजोन हम लोगों को लगता है कि दो अलग अलग गैस है, दे आर, बट एक्चुअली दे आर एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिखा हुआ है. इट इज़ रिटन लाइक एलोट्रोपी इन ऑक्सीजन एंड देर आर टू फॉर्म्स, ऑक्सीजन एंड ओजोन. तो जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन, उसी तरह ऑक्सीजन एंड ओजोन आर टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. तो O जो है O वो दो फॉर्म बना रहा है, O2 एंड O3. प्लीज़ रिमेंबर दिस. ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप्स है, O2 दैट इज़ ऑक्सीजन, कॉमन ऑक्सीजन, एंड O3 इज़ ओजोन. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ O2, राइट. सो ऑक्सीजन और O2 is the third most abundant element in the universe by mass.
सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स मिलते हैं नाइट्रोजन एंड हेलियम, उसी तरह हम लोगों को सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? ऑक्सीजन. ओके. एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 2 atoms of element bind to form डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. मतलब जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है तो हमेशा ऑक्सीजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं एंड दे फॉर्म O2 मॉलिक्यूल. इट इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस डायटोमिक गैस. या फिर हल्का ब्लू कलर उसका हो सकता है व्हेन इट इज़ इन अ सॉलिड फॉर्म. ओके. जब इट इज़ इन गैशियस फॉर्म इट इज़ कलरलेस, बट व्हेन इट इज़ लिक्विड और सॉलिड स्टेट it has blue color. Okay. Then its formula is O2. तो ऑक्सीजन की जब हम लोग बात करते when it is in diatomic state it is O2. Okay. So MO2 also confirms that it has 2 unpaired electron, one each in its 2 anti-bonding p-pi orbital. Okay. तो easily it can form pi bond और डबल बॉन्ड विथ अदर एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने देखा था H2O वगैरह इस तरीके से, या फिर CO2 में डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है. डायटोमिक ऑक्सीजन गेट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90 और 20.95% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. हमें पता है कि हवा में सबसे ज़्यादा जैसे नाइट्रोजन मिलता है उसी तरह एटमॉस्फेयर में 21% अबाउट क्या है? ऑक्सीजन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इट ऑलवेज शो स्टेबल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर. तो बाकी के जो एलिमेंट्स है इसी ग्रुप में उससे सबसे ज़्यादा या फिर कंफर्म पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑक्सीजन दिखाता है. सो दीज आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ O2 दैट इज़ ऑक्सीजन. नाउ वी विल सी अबाउट ओजोन. ओके. तो ओजोन क्या है? इट हैज़ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर O3. ओके. वो O2 था, ये O3 है. ओके. सो ओजोन और इट इज़ ट्राई ऑक्सीजन, वो डाई ऑक्सीजन था ना. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई ऑक्सीजन इज़ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला O3, है ना. देन ओजोन हमें क्या कहाँ मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक discharge through oxygen and it is concentrated up to 10% of O3. ओके. जैसे आप लोग अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हो ऑक्सीजन से तो हम लोगों को O3 मिल जाता है. इट इज़ लेस स्टेबल दैन O2, है ना. एंड इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज़ अ पेल ब्लू गैस विथ डिस्टिंग्विशली पंजेंट स्मेल. देखो ऑक्सीजन तो हमें जीने के लिए, पानी पीने के लिए एवरीवेयर ऑक्सीजन इज़ वेरी मच नीडेड. ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है. ओजोन भी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर ओजोन लेयर फैला हुआ है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है. बट इट हैज़ अ पंजेंट स्मेल. उसकी स्मेल कैसी है? पंजेंट है. ओके. इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ मच लेस स्टेबल दैन डायटोमिक एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन. ओके. मतलब हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उससे वो बहुत कम स्टेबल है एंड इट इजीली ब्रेक डाउन इनटू लोअर एटमॉस्फेयर टू O2. तो जहाँ पे वेरी हाई एटमॉस्फेयर है, लेयर है, वहाँ पे ही O3 मिलता है. लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं नियर टू द अर्थ सेंटर और अर्थ लेवल, तो वो O3 इज़ ब्रेक्ड इनटू O2. ओके. इट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट हैज़ अ डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर. वो पैरामैग्नेटिक था और ये क्या है? डाईमैग्नेटिक है. ओके. देन वी कैन सी देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर के ये कैसे होते हैं. डायटोमिक ऑक्सीजन इज़ O2 एंड ट्राइएटोमिक ऑक्सीजन इज़ O3 एंड दे आर इजीली कन्वर्टेबल इन ईच अदर. O2 और O3 एक दूसरे के साथ ईजीली कन्वर्ट हो सकते हैं. Okay, so these are all about the allotropy of oxygen. In next lecture we will discuss about the allotropy of sulfur. Okay, till that you take care and stay safe. Thank you.